The topic that we are going to do, the topic that we are going to do today is convolution. The topic that we're going to start with is convolution. What is convolution that we will be discussing? What is convolution that we will be discussing? And obviously, the importance of convolution. We'll be dealing with the importance of convolution. Sir, your screen is not showing. Okay, no worries. Okay, we'll be dealing with the importance of convolution and why this convolution is known as heart. Today is Valentine Day, na? Okay, so happy Valentine Day. Why it is known as heart of signal system domain. ये आज हमको सीखना है कि कन्वोल्यूशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, और इसको हम क्यों हार्ट ऑफ सिग्नल सिस्टम कहते हैं. अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, so you will be surprised to see that this convolution will be there. See, just have a look over here. I'll share with you the syllabus copy so that you get some intuitions, some crux, like why I'm saying something about this. Just have a look over here. See, you can see here that the first we'll be having here is convolution over here. See, convolution हमको पहले तो आपको यहाँ देखने को मिलता है convolution. जब हम फूरियर सीरीज करने वाले हैं तो यहाँ पर भी कन्वोल्यूशन का यूज होगा. विल बी लर्निंग कन्वोल्यूशन ओवर हियर एज वेल, हाउ आई बी यूजिंग द फूरियर ओवर हियर इन दिस केस. अगर आप सेमेस्टर 5 में जाते हो डीएसपी पढ़ने के लिए, वहां पर भी कन्वोल्यूशन देखने को मिलने वाला है आपको. दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग दिस इज द हार्ट ऑफ द सिलेबस एंड आई विल बी यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्रू आउट द सिलेबस वेर एवर आई रिक्वायर. ओके, नाउ before we start with the convolution, let me tell you a very short story. Story number 1 starts over here. Election is coming up in the UP, गोवा, मणिपुर, आसाम, राजस्थान ना 2022 का इलेक्शन है. ये है हमारे नेताजी जो भाषण देने वाले हैं, और ये भाषण देने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बुक कर दिया. ये ऑडिटोरियम बुक करने के बाद में जो लोग थे, ऑडियंस जिसको मैं कहता हूं, ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स, व्यूअर्स, व्हाटएवर यू से, they start accumulating over here so that they can hear what Netaji is going to speak. Fine, so these all are people, these all are audience. कुछ घर है आसपास में, आजू बाजू में कुछ घर है यहाँ पे, जहाँ पे महिला है, बूढ़े बुजुर्ग, दिव्यांग लोग जो है वो अपने घर में बैठे भाषण सुन सकते हैं. उनको भी भाषण सुनना है कि भाई नेताजी क्या बोलने वाले आज के इलेक्शन कैंपेनिंग में. तो ये पूरा शो शुरू होता है at 5 p.m. When Netaji started speaking, unfortunately what happened, only the people over here, that is the front seat occupiers, were able to hear what Netaji is speaking. The people at the back end were not able to hear anything. Even the people who were there in the room, in the houses, in the flats, they were not able to hear anything. What was the problem, sir? This was the problem. The problem got identified by one of the engineer from SPIT, obviously. That person came up, okay, I have a solution to this problem. What is the solution, sir? Can you tell me what is the solution for this problem? What is the solution for this problem? Sir, voice को amplify Sir, करो. mic and speakers. Make a pardon, sir, Rahul. Be little Sir, clear and louder. Speakers and mic. Exactly. So as rightly told by Rahul Joshi, I require what? I need to put a public address system. What is the meaning of a public address system? I require a microphone. What is the role of this microphone? This microphone will capture the sound, the audio signal, which is in the form of compression, rarefaction, which you might have studied in your 11th physics 1, chapter number 6, sound waves. Fine. This signal, audio signal, is converted from this format to this format. Okay, and then it is given to a amplifier. Okay,
What is there inside the amplifier? I don't know what is there inside the amplifier. It is currently a black box for me. It could be either a op-amp based amplifier, it could be either a differential amplifier, it could be either a RC coupled CE amplifier, it could be a MOS FET based amplifier. I'm not at all interested in that. What I know, this is the black box which is going to amplify, which is going to magnify, which is going to multiply the input coming at the input terminal. Is it clear? And then I get this kind of output. And then this output is again given to a speaker. What is the role of a speaker, sir? The role of a speaker is again to convert this signal in the form of this compression rarefaction, because a human ear can respond only to this. A human ear can't respond to this. So this microphone, this loudspeaker are acting as a transducer, converting from one form to another form. I hope the story is clear to you. Now, जब ये चीज लगाया, so now everyone in the audience, everyone, महिला, दिव्यांग, गुरु, जो बुजुर्ग लोग थे, जो oldies थे, they were able to hear what Netaji is going to speak, what Netaji is speaking. I hope the story of the amplifier is clear to you. Now, कौन था सर ये? कौन था वो? एम्पलीफायर था. ये एम्पलीफायर क्या था? ये बन गया यहाँ पे हीरो. ये वही डब्बा है जिस वजह से मैजिक हो गया. तो मैं कहता हूं कि एम्पलीफायर इज नाउ करंटली अ मैजिकल बॉक्स फॉर मी. This amplifier is currently a magical box for me. Understood? Now question to arise, what is happening in the magical box? Magical box में क्या हो गया? तो वहां के जो illiterate जो लोग थे, वहां के जो अंगूठा छाप जो लोग थे, उन्होंने वो amplifier box के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया. क्या एक्सपेरिमेंट किया? बोला देख, अगर मैं इनपुट 2 देता हूं, तो मुझे आउटपुट मिलता है 20. अगर मैं इनपुट 3 देता हूं, तो मुझे आउटपुट मिलता है 30. अगर मैं इनपुट 4 देता हूं, तो मुझे आउटपुट मिलता है 40, एंड सो ऑन. सवाल ये उठता है कि सर ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये जो बलून है, ये ब्लैक बॉक्स जो है, जिसके अंदर कौन है? हु इज देयर इनसाइड? व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड? एज अ वर्च्यू ऑफ विच आई एम गेटिंग 2 का 23 का 34 का 40 एंड सो ऑन. हाउ कैन आई ब्रिंग दिस? How can I burst this balloon? How can I open this black box? If I open the black box, if I burst the balloon, what will happen? If I burst the balloon, if I open the black box, the person who is inside that black box, the person who is inside the balloon will come outside. So how can I make this person A to come outside? What is the solution? तो मुझे एक जन ने बोला, देखो सर, I am a mathematician. I am a person who is a mathematician. I am a mathematician. तो देखिए सर यहाँ पे क्या होता है. As a mathematician, what I can do for you, that if I say this is output, V out is the output voltage. What is V in, sir? What is V in? Input voltage. So I can write mathematically. अभी कौन लिखने वाला है यहाँ पे लिखने वाला है mathematician. मैथमेटिशियन बोलता है, देखो सर, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. आपको क्या चाहिए? मैं बोला, मुझे चाहिए, आई वांट द पर्सन हु इज देयर इनसाइड दिस ब्लैक बॉक्स, हु इज इनसाइड दिस बलून टू कम आउटसाइड. बोले देखिए काम करते हैं. मैथमेटिशियन बोलता है, सी व्हाट मैथमेटिशियन से, मुझे मैथ्स नहीं आता है, मैथमेटिशियन मुझे बता रहा है, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है. देखो सर क्या हो रहा है यहाँ पे. वी आउट कैन बी रिटन एज मैथमेटिकली A टाइम्स V इन. व्हाट इज दिस सर? मैंने बोला देखो सर, आउटपुट जो है, मैथमेटिशियन बोल रहा है, आउटपुट जो है वो V इन, आप जो इनपुट दे रहे हो उसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है A के साथ में. लेट अस अज्यूम A is there inside the balloon. Let us assume A is there inside the black box. So what is that A? That I want to find. What is my main role? What is my main agenda? मेरा main aim क्या है? मुझे A की वैल्यू निकालना है. तो मुझे बोलता है देखो, V out जो है ना वो A into V इन हो रहा है. मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो I can write, मैथमेटिशियन बोल रहा है, I can write therefore A is equal to V out divided by V in. Therefore A is equal to V out upon V in, which is equal to, I'm changing the color for you, equal to 40 upon 4. यहां से आया सर. 30 upon 3 कहां से आया सर? 30 upon 3 यहां से आया. फाइन. इक्वल टू 20 upon 2, इक्वल टू 20 upon 2. इसने ये बताया मुझे. फाइन. मैं बोला भाई मुझे मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं आता, तो कहना क्या चाह रहा है? बोले देखिए सर, यहाँ पे क्या होता है, इफ यू नो, like 4 ones are 4, 4 tens are 40, 3 ones are 3, 3 tens are 30, 2 ones are 2, 2 tens are 20, A equal to 10. ऐसा कौन बोला मुझे? ऐसा मुझे मैथमेटिशियन ने बोला. मैं बोला भाई देख, मुझे मैथ्स कुछ नहीं आता है.
तू मेरे सामने 4 1 जा 4 10 जा करेगा ना, सर पे जो बचे कुछ बाले वो भी चले जाएंगे मेरे। तो मुझे तू प्यार से बता, अच्छे से एक्सप्लेन कर। बोला सर एक काम करिए, मैं आपके लिए काम और इजी करता हूँ। क्या बोला उसने मालूम मुझे? बोला सर आप एक काम करिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस मगजमारी, वर्डिंग सुनिए सर, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस मगजमारी, व्हाई डोंट यू राइट लाइक दिस, वी आउट अपॉन वी इन। ये एक्सप्रेशन है? बोला हाँ ये एक्सप्रेशन है। अगर आप, वर्डिंग पे ध्यान दीजिए सर, अगर आप वी इन को 1 करते हो, अगर आप वी इन को 1 करते हो, जो आज तक आपने कभी नहीं किया, आपने 2 दिया 3 दिया 4 दिया, आपने 1 दिया, बोला नहीं दिया 1, अगर आप 1 देते हो तो जो भी आउटपुट आएगा, that output will be directly equal to A। बोला मतलब देखिए ना सर, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे एक्सप्रेशन को, अगर आप यहाँ पे गौर से देखते हो, यहाँ पे अगर मैं कहता हूं A will be equal to V out upon 1, 1 कहां से आया सर? लकी नंबर नहीं, मैं बोला मैंने V in को 1 दिया, अगर मैं V in को 1 देता हूं तो आपका आउटपुट डायरेक्टली A होगा। मैं बोला हाँ ये काम तो मैं कर सकता हूँ, मैंने 2 दिया, मैंने 3 दिया, मैंने 4 दिया, अभी आप 1 दीजिए खाली। इंस्टेड ऑफ गिविंग 5 6 7 एंड सो ऑन, व्हाई डोंट यू गिव 1? तो जब मैंने 1 दिया तो मुझे आउटपुट मिला 10। तो बोला बस खत्म, वही आपका ए है, दैट इज योर आउटपुट, ए इक्वल टू 10। समझा आपको क्या बोलने की कोशिश किया मैंने? ये मुझे मैथमेटिशियन ने बताया, और मैंने उससे समझने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर मैं इनपुट 1 देता हूं तो मुझे आउटपुट ए डायरेक्टली मिलने वाला है। अभी अभी सुनिए ध्यान से, अभी अगर मुझे आउटपुट ए जो ये है ना, ये जो ए है, ए एग्जांपल अल्लू अर्जुन समझ सकते हैं इसको आप, ठीक है, या आप मिस्टर ए बोल सकते हैं इसको, ये ए जो है, ये ए इज इक्वल टू 10। when I know that this value now is a 10, how do I came to know green color? What is green color? 1. When I'm giving input as 1, I got answer A equal to 10. So this has induced me, this has given me the final answer A equal to 10. So इससे ये पता चलता है कि अभी आज के बाद में मतलब कोई भी आर्बिट्री अननोन पर्सन, कोई भी आदमी यहाँ पे अगर लिखता है 7, तो बिना सॉल्व किए, बिना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, बिना लैब में जाए, मैं डायरेक्टली एट होम आई कैन से 7 10s are 70, 8 10s are 80, 9 10s are 90. Why? Because I know what is the value of A available in the balloon in the box. समझा आपको सर क्या बोला मैंने? Have you understood the entire story? Now question to arise, सर आपने बोला V in equal to 1 देने का, V in 1 दोगे तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो डायरेक्टली A मिलने वाला है, आपका आउटपुट डायरेक्टली A मिलेगा। तो सर ये V in equal to 1 का मतलब क्या होता है? What is the meaning of V in equal to 1? Do you mean कि I should provide input as step? Because वहां पर भी तो आपने 1 ही दिया था, if you remember sir. If you remember, I have given 1 1 1 1 1 1 throughout. Should I give that? Or do you think I should give as unit impulse? क्योंकि वो भी 1 हुआ था। कब 1 हुआ था? वो 1 जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट पे 1 हुआ था, only at t equal to 0. So what should I do, sir? Should I give 1 continuously like the case of unit step, or should I give for only that particular instant of time? क्या करना पड़ेगा sir? Tell me. If you have understood the entire story. Yes, Namita, can you help me out beta in this case? Have you heard the entire story? Yes sir. Okay, tell me madam. मुझे मैथमेटिशियन बोलता है कि अगर आप V in को 1 कर देते हो, तो आपका आउटपुट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू दैट A which is there inside the balloon, वो A डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो V in इक्वल टू 1 क्या भाई, स्टेप देना है कि इम्पल्स देना है सर? क्या देना है, स्टेप देना है या इम्पल्स देना है? दैट इज द क्वेश्चन। Yes, Sir, yes. I think impulse शायद, because we can always multiply it by the factor to get whatever we want. But अगर step दिया तो वो continuous 1 ही रहेगा. Okay. Any other student? Madam, we have discussed a lot on this impulse and step. Why do you require impulse? You can refer to the lecture of Wednesday. I That think was 9th of February. 9 February का लेक्चर आप देख सकते हो. We have discussed a lot on that. हाँ बोलिए सर.
सर आई थिंक स्टेप होगा बिकॉज जो वॉइस है फिजिकल सिग्नल है वो कंटिन्यूअस है एंड स्टेप फंक्शन भी कंटिन्यूअस है. Okay, sir, can you help me in the previous class that was on 11th, I guess, है ना, हमने डिस्कस किया था about transient. Do you remember the story transient? क्या हुआ था यहाँ पे? Transient क्या था? हाँ सर, पोस्ट रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स. हाँ, what was happening on this cadet case बेटा? Transient में क्या हुआ था? There were 3 students were there, Tom, Dick, Harry. तो उन लोगों को हम लोगों ने टप्पू मारा था. क्या हुआ था वहाँ पे? स्टोरी सुना सकते हैं मुझे? What happened in that case? तो पहले जन ने बस ऐसा रिक्वेस्ट किया कि ऐसा नहीं करने को और दूसरे जन ने गाली Okay. दी है. ओके, तो 1 2 3 केस आपने देखा और मैंने शायद यहाँ पे जो इसको मैंने टप्पू मारा था, टप्पू मतलब इसको मैं कहता हूँ इम्पल्स, बिकॉज मैं कंटिन्यूस तो नहीं मारा था वहां पे. वाज ए पुटिंग कंटिन्यू कैसे टप्पू कंटिन्यूस तो नहीं, और एक बार मार के छोड़ दिया मैंने, और वो मारने के बाद में मैंने यहाँ पे देखा कि ये इसने अलग बोला, इसने कुछ अलग बोला, इसने कुछ अलग बोला. अब मैं हूँ यहाँ पे, ये मैं हूँ जो कल्प्रिट है, जो गुनेगार है, जिसने टप्पू मारा है. मेरे बाजू में मेरा एक फ्रेंड बैठा है राहुल करके. राहुल इज माई वेरी गुड फ्रेंड. ओके, अभी राहुल मुझे बोलता है फितरत, बिहेवियर, घर के संस्कार, अच्छे घर का दिखता है, इसलिए प्यार से बोला. ये डेफिनेटली गुंडे का लड़का दिखता है, इसलिए डायरेक्ट पंच मारा उठा के. फितरत है इनका सर, फितरत है. समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं? ओके, नाउ मैंने आपको फिर आपको मैं सेकंड में चीज मैंने आपको बताया कि जब कोविड आया, कोविड-19 20 मार्च 2020 के टाइम पे एवरीवन वाज रेजिस्टिंग. व्हाट रेजिस्टिंग? किती त्रास आहे, ऑनलाईन होणार, कसं पॉसिबल आहे, स्क्रीन टाइम वाढणार, कसा अभ्यास करायचा, किती डिफिकल्ट आहे. अभी आप मुझे बताओ, इसने रिक्वेस्ट किया है, इसने गाली दिया है, ठीक है, और इसने पंच मारा है. सबसे ज्यादा रेजिस्ट कौन करेगा? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन दिखाने वाला है? पंच वाला. क्यों बेटा? क्यों 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 क्यों? क्योंकि बोलिए वो सर. इंस्टेंटली अपोज कर रहा है. क्यों क्यों क्यों? राहुल का वर्डिंग्स पे रिपीट करिए सर. राहुल का वर्डिंग्स क्या था? क्या गुंडे बोला था उसने? संस्कार, फितरत. यू रिमेंबर दिस वाज द वर्डिंग्स. क्योंकि उसकी फितरत ही वैसी है, उसकी फितरत ही वैसी है कि कुछ भी अगर इनपुट दिया तो पहले रेजिस्ट करने का. नहीं नहीं, मैं नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा. सर व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस पर्सन जिसने प्यार से बात की आपसे, भाई क्यों मस्ती कर रहा है? आपको क्या लगता है, क्या ये रेजिस्ट करेगा? नहीं, वो अडेप्ट कर लेगा. एग्जैक्टली नहीं, मतलब वो इसका adapt एडेप्टेशन का जो टाइम है विल बी वेरी फास्ट कंपेयर टू दिस पर्सन. तो ट्रांजिएंट जो है वो आपको ये बताता है कि कौन सा पर्सन विल रेजिस्ट मोर, कौन सा पर्सन विल रेजिस्ट लेस. समझते हैं, इसकी फितरत ही वैसी है. 2021 आ गया, एक साल चला गया. 2021 जब आया, ये भी पढ़ाई कर रहा है, ये भी पढ़ाई कर रहा है, ये भी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई तीनों कर रहे हैं. रेजिस्टेंस इसने फॉर एग्जांपल 1 मंथ का दिखाया रहेगा, इसने फॉर एग्जांपल 4 महीने का रेजिस्टेंस दिखाया रहेगा, इसने शायद से 6 से 8 महीने का दिखाया रहेगा. फितरत है ना सर, फितरत है. लेकिन 6-8 महीने के बाद में ये भी अडेप्ट हो गया, ये भी अडेप्ट हो गया, ये भी अडेप्ट हो गया. व्हाई? बिकॉज इनपुट वाज कंटिन्यूअस इन नेचर सर. इनपुट वाज कंटिन्यूअस इन नेचर. अभी जो आपको जो रिस्पॉन्स जो मिल रहा है 2021 में, जहां पे ये भी सीख रहा है, ये भी सीख रहा है, ये भी सीख रहा है, ये रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे? दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज फोर्स्ड रिस्पॉन्स. क्योंकि फोर्स किया जा रहा है कि नहीं करना है, नहीं करो या मरो, इट इज डू और डाई वाला कंडीशन, यू हैव टू डू इट. तो ये जो रिस्पॉन्स आपको जो मिल रहा है, ये रिस्पॉन्स को कहा जाता है फोर्स्ड रिस्पॉन्स, और आल्सो नोन एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. Now, can you able to differentiate between a transient response and a steady state response, sir? Yes, there is a heavy possibility you will say कि सर राहुल का मार्क्स थोड़ा अच्छा आएगा बिकॉज बहुत मेहनत करता हुआ लगता बच्चा है. मार्क्स इसका थोड़ा कम आएगा, मतलब अगर ये 100 में से 90 लाता है तो हो सकता है 100 में से 70 लेकर आएगा, लेकिन पढ़ाई ये भी कर रहा है बिकॉज इनपुट कंटिन्यूस है. तो ये जो एरर जो आ रहा है, ये जो एरर जो आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस द रेजिस्टेंस, बिकॉज एरर है, दिस एरर वी कॉल इट फर्दर एज स्टेडी स्टेट एरर, ESS. लेकिन रिस्पॉन्स जरूर दिखाएगा बिकॉज इनपुट कंटिन्यूअस इन नेचर है सर.
समझ रहा है सर? वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, ये है ट्रांजिएंट टाइम है, ये स्टेडी स्टेट टाइम है, और ये सॉरी दिस इज ट्रांजिएंट रिस्पांस, दिस इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस, एंड दिस इज स्टेडी स्टेट एरर। एरर क्यों होगा सर? एरर इसलिए कि हर बच्चे का अपना फितरत होता है, कोई जो है वो 100 में से 90 लाने की कोशिश करता है, कोई 80 लाता है, कोई 60 लाता है, कोई 40 लाता है, तो वो एरर तो आना है कि भाई जो है वो यहाँ पे 20 कम हो गया, 30 कम हो गया, 40 कम हो गया, इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर, बिकॉज यहाँ पे इनपुट कंटिन्यूस इन नेचर है, इसलिए आपको स्टेडी स्टेट देखने को मिलता है। अब मुझे बताइए सर, अगर जब मैंने इंपल्स प्रोवाइड किया था, जब मैंने इनपुट मेरा इंपल्स था, तो मुझे क्या मिलता था? सिर्फ मुझे ट्रांजिएंट रिस्पांस मिला, क्या स्टेडी स्टेट मिला? नहीं, बिकॉज वो पंच मारा, चुप हो गया, ये इसने मुझे गाली दे, चुप हो गया, और ये जीरो से गलत। यहाँ पे जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस वाज जीरो। यहाँ पे सर सुनिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अच्छे एनालॉजी के साथ में। सर ये मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट है इम्पल्स, जो मैंने जीरो पे दिया, मैं दिया और फट से मैं चुप हो गया। अभी अगर मैं रिस्पांस की बात करता हूँ, तो एग्जांपल अगर आप राहुल का, अगर इसका भी एग्जांपल, टॉम का अगर आप एग्जांपल, टॉम या डीके हैरी, टॉम का एग्जांपल देखते हो, तो मुझे इसने ऐसा आउटपुट दिया। क्यों? बिकॉज इसको टाइम लगा कि भाई क्यों यार परेशान कर रहा है। अगर मैं बाजू वाले की बात करता, इफ आई टॉक अबाउट डिक इन दैट केस, तो अगर मैं डिक की बात करता हूँ, डिक ने क्या किया सर? यहाँ पे डिक ने जो है मुझे ज्यादा इनर्शिया दिखाया, ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया। लेकिन अगर मैं हैरी की बात करता हूँ, तो हैरी का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज्यादा था, और उसने मुझे बहुत देर तक उसने मुझे कह रही क्यों मारा है, पंच मार दिया उसने मुझे। ये भी जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, रेड वाला भी जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे स्टेडी स्टेट इज जीरो, बट ट्रांजिएंट्स आर डिफरिंग बिकॉज फितरत, संस्कार, वैल्यूज ऑफ द होम। फाइन, आई होप दिस थ्री थिंग्स आर क्लियर टू यू। अभी सर मुझे बताइए कि मेरा मेन एजेंडा क्या है यहाँ पे? मुझे सिर्फ ए को बाहर निकालना है। आई ओनली वांटेड ए टू कम आउटसाइड। मुझे सिर्फ जानना है कि ये बॉक्स की फितरत क्या है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि बॉक्स का संस्कार क्या है। अभी आप मुझे बताओ सर, शुड आई प्रोवाइड इंपल्स और स्टेप? बोलिए सर, फास्ट। सर स्टेप। कैसे स्टेप यार? अभी हिंट दिया मैंने। इंपल्स, ऑब्वियसली मैं वही तो बोला ना सर, मुझे सिर्फ जानना है कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। आई जस्ट वांट टू चेक व्हाट इज द वैल्यू। ये बॉक्स की फितरत क्या है, ये बॉक्स की वैल्यू क्या है, ये बॉक्स की संस्कार क्या है, मुझे सिर्फ ये ढूंढ के निकालना है। तो मैं ऑब्वियसली इंपल्स दूंगा सर, बिकॉज द मोमेंट आई प्रोवाइड इंपल्स, आई कम टू नो, जैसा मुझे राहुल ने बताया, आई विल कम टू नो कि भाई ये टॉम की फितरत क्या है, इसकी फितरत क्या है, इसकी फितरत क्या है। सर अगर मैं स्टेप दे देता हूं, तो ऑब्वियसली पर्सन विल स्टार्ट बिहेविंग एज पर द इनपुट अप्लाइड। आदमी पढ़ाई करना शुरू कर दिया, राहुल भी पढ़ाई कर रहा है, ये डिक भी पढ़ाई कर रहा है, टॉम भी पढ़ाई कर रहा है, बिकॉज इट इज फोर्स्ड। मुझे किसी को फोर्स नहीं करना है, मुझे सिर्फ जानना है कि वो आदमी की वैल्यू क्या है, मुझे फितरत जानना है। तो सर आई विल बी प्रोवाइडिंग व्हाट सर? अब बोलिए। Impulse. Impulse, obviously. Is Shruti Raman is clear to you? Yes sir, अभी समझ। Why impulse? Why not step? So obviously I need to provide impulse only, not step. Again, any student over here not yet understood, okay, sir, why only impulse, why not step? Yes, yes, yes. ये कोई बुक में लिखा नहीं, you will not get the stories in any of the book. बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है, you provide impulse and you get output as this. But क्यों impulse? That is the reason I have created this story, so that it becomes easy for you to understand कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। सर मुझे सिर्फ फितरत जानना है कि भाई वो बॉक्स के अंदर क्या है। Only want to know the value, कि वो वैल्यूज क्या है उसकी। तो ऑब्वियसली आई बी प्रोवाइडिंग इम्पल्स, बिकॉज इफ आई प्रोवाइड स्टेप सर, अगर मैं स्टेप प्रोवाइड करता हूं तो मेरा आउटपुट जो है वो स्टेप ही होगा। क्यों स्टेप होगा? अरे 2 मिनट रेजिस्ट करेगा, 5 मिनट रेजिस्ट करेगा। अगर वो डॉन का बेटा हैरी अगर रहा तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा रेजिस्ट करेगा सर, बिकॉज इनपुट इज फोर्स्ड। ऑब्वियसली आउटपुट हैज टू बी स्टेप आफ्टर सम टाइम। मुझे वो नहीं चाहिए यार, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो ए की वैल्यू क्या है, बस मेरा वही रोल है सर। समझा आपको? इसलिए मैंने वहां पे इंपल्स प्रोवाइड किया है। ओके, अंडरस्टूड दिस स्टोरी सर। अभी हम लोग कुछ नया चीज करके देखते हैं यहाँ पे। सुनिए, वैलेंटाइन डे है आज, तो रोमियो, जूलियट, और भी कुछ नाम बोलिए सर। श्री, फराद, और कुछ नाम, और कुछ नाम, और कुछ नाम, फास्ट 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 फास्ट। लैला मजनू, और कुछ। ओके ओके, वेरी गुड बेटा, क्या सो स्वीट ऑफ यू। लैला मजनू, ओके, वही करने वाले हम लोग सर। यहाँ पे मैंने दिया इनपुट, क्या दिया मैंने? इनपुट। इनपुट का नाम क्या था? वी इन।
मैंने बोला मैंने इनपुट दिया वी इन, तो क्या मिला सर? वी आउट। जब मैंने इनपुट दिया वी इन तो मुझे आउटपुट क्या मिला? वी आउट मिला। ओके, अगर मैं इनपुट देता हूं एक्स ऑफ टी तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा सर? वाई ऑफ टी। जोड़ी जोड़ी कपल बना दीजिए, एक्स ऑफ टी दिया तो मिलेगा वाई ऑफ टी। ओके, फिर बोला अभी एक्स ऑफ टी नहीं देने का। क्यों? एक्स ऑफ टी तो रैंडम सिग्नल है, एक्स ऑफ टी तो रैंडम सिग्नल है। अगर मैंने डेल्टा टी दिया, यस, व्हाट इज डेल्टा टी? फास्ट, व्हाट इज डेल्टा टी? बोला था भाई, शक्ल याद होना चाहिए। इम्पल्स। क्या बोले बेटा नमिता? फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। सर इम्पल्स। इम्पल्स मतलब अगर मैंने इनपुट इम्पल्स दिया तो भाई आउटपुट क्या होगा फिर? व्हाट विल बी द आउटपुट? इम्पल्स रिस्पॉन्स। द आउटपुट विल बी इम्पल्स रिस्पॉन्स, है ना? इनपुट को कहा जाता है इनपुट, इसको कहा जाता है आउटपुट। ओके, इसको कहा जाता है एक्साइटेशन, इसको कभी कभी कहा जाता है एक्साइटेशन, और इसको कहा जाता है रिस्पॉन्स। व्हाई इट इज नॉट एक्साइटेशन? बिकॉज इससे आप सिस्टम को एक्साइट करते हो, आप सिस्टम को जागरूक करते हो, तो आपका आउटपुट क्या मिलता है? उसका आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैंने कहा कि अगर आपने इनपुट डेल्टा टी दिया तो आउटपुट विल बी एच, छोटा लेटर एच ऑफ टी। काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस सर, kindly make a note of it, very very important, kindly make a note of it। डेल्टा टी दिया तो आपको मिला h ऑफ t, डेल्टा टी दिया तो आपको मिला h ऑफ t। काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस। ये मैंने क्या बनाया सर? यहाँ पे मैंने कपल बना दिया, रोमियो जूलियट, श्री फराद लैला मुझे, वैसा मैंने कपल बना दिया। वी इन रहेगा तो वी आउट बोलने का, x ऑफ t रहेगा तो y ऑफ t बोलने का, डेल्टा t रहा तो h ऑफ t बोलने का। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बुक में नहीं लिखा है सर ये, नो वन विल टीच यू लाइक दिस। बुक में डायरेक्टली लिखा गया डेल्टा टी दोगे तो एच ऑफ टी मिलेगा, बट पता होना चाहिए कैसे आया करके, क्या स्टोरी है वहां पे। अब आते हैं मैथमेटिशियन पे। कहाँ गए हमारे मैथमेटिशियन? सीआरजी सर, मेघना मैडम, लीदा मैडम, मैथमेटिशियन को बुला दीजिए। मैथमेटिशियन बोलता है कि वी आउट इज इक्वल टू ए टाइम्स वी इन। कौन बोला सर ये? कौन बोला? इक्वेशन किसने दिया ये? यस यस यस, कौन बोला एक्सप्रेशन वी आउट इक्वल टू ए इंटू वी? नाम देखिए यहाँ पे, किसका नाम है? मैथमेटिशियन का। अभी इतना अच्छे से पढ़ाया तो मुझे बोलिए इसको यूज करके, पहले मैंने इसको यूज किया, पहले मैंने इसको यूज किया, अभी आप इसको यूज करिए। मुझे बताइए सर क्या लिखो यहाँ पर मैं फास्ट। व्हाट इज वी आउट? वाई टी। H of वेरी गुड, Y of वाई ऑफ t। बेटा सेकंड वाले की बात चली। वाई ऑफ टी इक्वल टू ए का ए ना, ए तो ए रहेगा, उसमें थोड़ी बेचारे में कुछ चेंज हुआ है। ए मतलब वैलेंटाइन डे अपना। ओके, व्हाट इज वी इन? एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी। समझ गया सर कैसे लिखा मैंने एक्सप्रेशन? यस सर, अंडरस्टूड। नाउ माय डियर फ्रेंड अंडरस्टैंड दिस। अभी अगर मैं इसको लिखता हूं, इसको लिखता हूं, क्या कैसा लिखूं यहाँ पे बताइए मुझे? व्हाट शुड आई राइट नाउ? व्हाट शुड आई राइट? H of t is H of equal t. to A into H of t delta. is equals h to of A t is delta equal to a dot delta t। क्या बात है मैडम, वी आर वेरी टैलेंटेड। हाँ, ओके, ए चल नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ। सो ए कैन बी रिटन एज h of t divided by delta t। Do you agree to this or not? Do you agree with this? Yes sir, ये तो पता है, ये तो बेसिक है मैथमेटिक्स कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन हो गया, बट डेल्टा टी इक्वल टू 1, ये कहां से बीच में आ गया रे अमरीश पुरी? कुछ भी बोलते हो सर, ये कहां से 1 हो गया? ये कहां से 1 हो गया? ये कहां से 1 हो गया? Why it is 1? हमने provide किया to get the value of A. ये 1 कहां से हो गया? अरे अभी पढ़ा ना हम लोगों ने कि इम्पल्स हमेशा 1 होता है। कब 1 होता है? एट t इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो 1 हो गया। So if I substitute delta t equal to 1, why delta t equal to 1? Because impulse input is 1 only at t equal to 0। इसलिए वो वैल्यू जो था delta t equal to 1 for t equal to 0, वो वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। I can say this will be equal to h of t। So I can write here h of t is equal to a, therefore h of t equal to a। चलो लेकर आओ रे उसको ऊपर, चल भाई ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल। कहां चलेगा तू? तो यहां आ जा, इधर आ जा। y of t is equal to
जिसको ये एक्सप्रेशन समझा उसकी जिंदगी बन जाएगी सर। समझा कि नहीं समझा एक्सप्रेशन कैसा लिखा है, बुक में डायरेक्ट लिखते। हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? हैव यू अंडरस्टूड सर? कैसे आया? बुक में डायरेक्ट लिखा है, Yes, sir. बुक के अंदर डायरेक्ट लिखा है y ऑफ टी इज इक्वल टू h ऑफ टी डॉट x ऑफ टी। बच्चा कंफ्यूज होता है, कह रहे यार ये कैसे हो गया अचानक। इसलिए ये स्टोरी मैंने बनाया है, माय ओन फ्रेम्ड स्टोरी, कि लाइक दो स्टोरी समझ में आता है कि हाउ द थिंग्स आर डिराइव्ड एंड हाउ दिस एक्सप्रेशन इज डिराइव्ड। ओके, दैट मींस नाउ यू हैव अंडरस्टूड सर। ओके चलो, तो आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में y ऑफ टी इज इक्वल टू h ऑफ टी डॉट x ऑफ टी। ये देखिए सेम स्टोरी था सर, यहाँ पे 20/2 से v out by v in v out in v, then what is v in step और इनपुट डेल्टा h of n। ओके, ये स्टोरी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अभी सर आपको मैं वर्डिंग्स पढ़ा देता हूँ, आप एक बार वर्डिंग्स पढ़ लीजिए एंड नाउ यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। वर्डिंग्स पढ़िए सर। कन्वोल्यूशन हार्ट ऑफ सिलेबस, कैन यू रीड दिस लाइंस फॉर मी एंड प्लीज डू वन थिंग, instead of dt you write here ct continuous time and x of t, because हम लोग continuous time signal पढ़ते हैं, discrete के अंदर वर्डिंग वैसा आ जाने वाला है। बोलिए सर क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो? Can you explain me this? Have you understood what is trying to explain? बोलिए सर। सर हमने अभी जो फॉर्मूला देखा y ऑफ t इज h ऑफ t टाइम्स x ऑफ t, उसी का Yes. सेंटेंस है, उसी को वर्डिंग्स फॉर्म में डाल रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब अगर आपको पता है कि वो जो सिस्टम है, वो जो ब्लैक बॉक्स है, वो इम्पल्स देने पर कैसा बिहेव करेगा, मतलब अगर आपको पता चल जाता है कि a इक्वल टू 10 बिकॉज इनपुट इज 1, देन यू कैन फाइंड द आउटपुट फॉर एनी सिस्टम। फिर कोई भी सिग्नल तो आप 4 दोगे, आप बोलोगे हाँ 4 10 40, 5 दिया 5 10 50। मतलब आपको लैब में जाने का जरूरत ही नहीं है। विदाउट गोइंग टू लैब यू विल लेट मी नो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर एनी आर्बिट्री रैंडम सिग्नल x ऑफ t। समझा सर यहाँ पे? ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब स्टोरी आगे लेके ले जाते हैं हम लोग कि भाई क्या होने वाला है यहाँ पे। अभी सर यहाँ देखिए आप, नेसेसरी चेंजेस करेक्शंस करने वाला हूं यहाँ पर मैं, बिकॉज हम डील करने वाले किसके साथ में? कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो ये एक सिस्टम है, अरे सेम चीज यहाँ पे देखा था ना अपने एम्पलीफायर में, ये है इनपुट सिग्नल। तो ऑब्वियसली अगर इनपुट सिग्नल है तो लैला मजनू की तरफ से ये हो जाएगा आउटपुट सिग्नल, ये हो जाएगा आपका इनपुट सिग्नल x ऑफ t। ओके, व्हाट विल द आउटपुट सिग्नल सर? y ऑफ t। हाउ डू आई राइट आउटपुट सिग्नल y ऑफ t एंड हाउ कैन इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स? कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? तो मैं लिखूंगा, अब इसको मत देखिए सर, डोंट लुक एट दिस। y ऑफ t इज व्हाट? इट इज नथिंग बट x ऑफ t। यस, when it will be x of t when I apply a transformation। यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, बोला x of t। okay, what is the transformation? In our case it was amplification, you are amplifying by a and hence you get the answer is v out। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल एक आपने फोटो निकाला, अपने फोटो को उसका आपने क्रॉप किया, उसको सैचुरेशन किया, उसका ह्यू बढ़ाया, ब्राइटनेस किया, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइंग। So by means when you pass a signal via system acts on that signal, system process on that signal, and the output that you get is y of t। The t is the transfer function, the t is the transfer function of the system, the t is the processor, the t is the actuator, the t is the operator on x of t। So I hope you have understood expression why I got a y of t equal to t times x of t। okay, now once you have understood this, now proceed forward sir। now if I say okay, now instead of impulse, instead of input as x of t and output as y of t, if I provide input as delta of t, then what will be the output sir? Then output will be what sir? h of t। अभी देखा हम लोगों ने यहाँ पे, just now we have seen ना, अगर मैंने input delta t दिया तो मुझे output क्या मिलेगा? h of t मिलेगा, impulse response बोलकर। So now I can write h of t is nothing but transformation applied on delta t। Do you agree with expression or not? Yes or no? Yes sir। अभी सुनिए सर, स्टोरी सुनिए।
मैंने ये जो काम किया, मतलब मैंने इम्पल्स दिया। कब दिया मैंने इम्पल्स? मैंने ये इम्पल्स 2 PM को दिया। मस्त खाना वाना खा के आया मैं, 2 बजे मैंने इम्पल्स इनपुट दिया। 2 PM को जैसे मैंने इम्पल्स इनपुट दिया तो मुझे आउटपुट कब मिलेगा? सर आउटपुट तो तुरंत मिल जाता है, आउटपुट तो तुरंत मिलता है यहाँ पे, बराबर ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर मैं चला गया, अगर लिखता हूँ 2 + 3, अगर मैंने एंटर मार दिया, आई गेट आंसर इमीडिएटली एट अ वेरी फास्ट पेस, गेट द आउटपुट। मतलब मुझे आउटपुट के लिए डिले नहीं करना है। मतलब अगर मैंने इनपुट दिया 2 PM, मुझे 2 PM पर अगर मैंने इनपुट दिया तो मुझे आउटपुट भी 2 PM पर मिलेगा। अब सुनिए सर स्टोरी, अगर मैं इनपुट 2 PM के जगह पर 3 घंटे डिले करता हूं, ठीक है, मंडे को 2 PM को दिया, सेकंड टाइम मैंने इनपुट कब दिया? मैंने चल अभी मैं ना 2 PM को नहीं देने का, अभी ना आराम से देंगे मस्त, 3 घंटे के बाद मूवी देखने के बाद में देखेंगे हम लोग। 5 बजे मैंने इनपुट दिया एट 5 PM, कब आउटपुट मिलेगा सर? व्हेन विल द आउटपुट आई विल गेट? 5 बजे। एग्जैक्टली। क्या आउटपुट मेरा ऐसा होगा, चल भाई तूने 5 बजे दिया तो चल मैं भी अभी 8 बजे देखो आउटपुट दूंगा, मैं आई को डिले किया, मैं भी अभी आउटपुट लेट दूंगा? नहीं, आउटपुट विल आई गेट इंस्टेंटेनियसली। आपने 2 बजे दिया, 2 बजे मिला, 5 बजे दिया, 5 बजे मिला। कितने से डिले किया आपने सर? 3 घंटे से डिले किया आपने, डिले किया बाय k टाइम्स। व्हाट इज k वैल्यू? k = 3 hours। So I can write here delta of t minus t minus t। What is t सर? आपको t दिखा देता हूं यहां पर मैं। I can say this is t for me, capital T। Are you understanding sir what I'm trying to say? So obviously my output will be h of t minus capital T, t minus capital T. So now I can write here h of t minus capital T is equal to delta of t minus capital T। सर समझा क्या आपको क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? Have you understood this expression or not? Yes. Okay, fine. Kindly make a note of this in your notebook. Very, very important, sir. Kindly make a note of this in your notebook. पहले कहा था आपको मैंने सर कन्वोल्यूशन क्या होता है वो समझेंगे हम लोग, और फिर कन्वोल्यूशन का इंपॉर्टेंस हमको देखना है, वो हम समझेंगे। Fine. So I hope you have understood till this point. Fine. Now, अभी आप एक स्टोरी सुनिए यहाँ पर। कि what is the meaning of this? क्या लिखा सर मैंने, आप मुझे बता सकते हो? मैंने आपको बताया what is delta of t minus t। करेक्ट है सर? डेल्टा ऑफ t minus t, हम इसका डिस्कशन कर रहे थे सर हम लोग, सही है गलत? यू आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा ऑफ t minus t। व्हाट इज द मीनिंग डेल्टा t minus t? इनपुट हैज बीन delayed by how many units? By t units. Now what is the meaning of this? Sir, if I talk about delta t, what is delta t? तो बोलेगा सर डेल्टा t is nothing but this is the value delta t। सुनिए सर बहुत इंटरेस्टिंग है। at t equal to 0 I'll have value equal to 1। Fine. If I ask you what is delta of t minus 1, what is the value of delta of t minus 2? Can you help me out sir? Can you help me out? What will happen in this case? Delta of t plus 1, can you help me sir? Similarly delta of t plus 2, can you help me sir? What will going to happen in this case please? Delta t minus 1 में क्या हो जाएगा बताइए सर? Right shift by 1 unit. Exactly. ये क्या लिखे ला इधर? -1। ये उल्टा ले +1 -2। ये उल्टा ले रे +2। ओके, व्हाट अबाउट दिस केस सर? व्हाट अबाउट दिस केस सर? +1। तो ओके, उल्टा ले -1। ओके, व्हाट अबाउट दिस सर? व्हाट अबाउट दिस? +2 रहता, क्या लिखने के यहाँ पे? -2। फाइन। Okay, are you understanding better what I'm trying to say? Yes sir, I am understanding what you're saying. Okay, यहाँ पर मैंने, सुनिए ध्यान से सर, अभी स्टोरी थोड़ा चेंज होने वाला है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो कोम फंक्शन मिलता है। स्टोरी हमने ऑलरेडी देखा है, we have already seen this concept, what is the meaning of com function, because यहाँ पे आपने प्लस किया था। Do you remember this story? Yes or no? Do you remember this? Yes sir. Yes, okay. तो यहां पर मैंने ये प्लस करना था, तो यहां पर मैंने बोला सर एक काम करिए, अभी आप यहां पे लिखिए समेशन, यहां पे आप लिखिए समेशन बोल के, और फिर आप लिखिए n इज रनिंग फ्रॉम -∞ टू +∞, और यहां पे आप लिखते हो n।
and n will be like from any if n is 0 to delta t, if n is 1 to delta of t minus t, if n is 2 delta of t minus 2t and so on. अगर मैं लिखता हूँ now it is n equal to minus of 2, तो आप बोलेंगे not only t minus minus plus delta of t plus 2t, ये होगा तो आपको ऐसा मिलेगा. Agreed? Yes sir, we agree to this. लेकिन सर अभी थोड़ा स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला. क्या ट्विस्ट आएगा? जिसको ये स्टोरी समझेगा उसको पूरा कन्वोल्यूशन का बेसिक समझेगा भी क्या होने वाला है सर. Why do we use convolution? Why it is known as heart of convolution, heart of syllabus. चमको जैसे तेरे प्यार में जुगनू, ये क्या बना है सर मैंने? What is this? What I have drawn over here? What I have drawn? Any arbitrary signal, any arbitrary random signal x of t. This is any arbitrary random signal x of t. This is an audio signal as of now. This could be a sine wave, this could be ECG signal, this could be a seismic wave, this can be this can be anything, sir. This could be anything. Okay. Now, my dear friend, सुनिए ध्यान से सर, मजा आने वाला है यहाँ पे. अब मैं बोलता हूँ ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1. And if I multiply this Cohm function -2 -1 0 1 2, दिस कोम फंक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ में, व्हाट विल आई गेट सर? व्हाट विल आई गेट सर? क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा? पॉइंट्स पे वैल्यूज. क्या मिलेगा सर? ये क्या मिल रहा है यहाँ पे? व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर? व्हाट इज दिस? -2 -1, यहाँ पे मुझे मिला 2.5, -1 मिला पर 0.5. ये आपने सही बोला नमिता मैडम के सर आई विल गेट इज द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मैडम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल? कैन यू एक्सप्लेन? सर एग्जैक्ट इंटीजर पॉइंट्स पे ही हम लोग को वैल्यू मिलेगा उसका. एग्जैक्टली इंटीजर पॉइंट, एग्जैक्ट यस बेटा, एग्जैक्टली इंटीजर पॉइंट पर ही आपको वैल्यू मिलेगा. लेकिन अगर श्रुतिमन, अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज द वैल्यू अवेलेबल एट -1.5 इंस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू अवेलेबल एट 0.5 इंस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू अवेलेबल एट 1.25 इंस्टेंस, व्हाट विल बी योर आंसर बेटा? व्हाट विल बी योर आंसर? x of t का कुछ ना कुछ वैल्यू है उन इंस्टेंस पे. नमिता मैडम, हाँ अर्पित, नहीं सर. हाँ हाँ Zero. अर्पित, why zero? Why zero? We are multiplying the value between them, it is 0 already. जो डिस्क अपन कोम फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 है, हाँ, तो उसे yes. मल्टीप्लाई करेंगे तो yes 0 है. yes that is one of the answer that you are given. But अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा सर? I don't have a value what is available in between because I don't know what is the value. It could be either, for example, suppose ये 2.5 था, ये 2.5 था, ये हो गया आपको 1.5. So the value could be 2 in between, the value could be 2.45, the value could be 3. I don't know what is the value in between. But for the sake of estimation, for the sake of interpolation, for the sake of approximation, I am assuming the value to be 0. Kindly understand it better. ये Y1 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is the value at that instant of time. So I will say the value is not defined at that moment of time. I don't know what is the value, what is the value available. But for the sake of simplicity, I take it as 0. And mathematically it support yes the value is 0 as you told Arpit. Is it clear to you, beta? Is it clear to you? Yes sir. Okay. अभी सर मुझे एक चीज बताइए आप. Now you tell me a very basic thing. What is the difference between summation and integration? Summation is discrete for discrete value and integration is for continuous values. Okay, very good beta. Any other student? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं. I'll start from 0. You know, I start everything from 0. Yes. Pranjal, can you tell me, beta? Integration is like a discrete summation except that the interval between each discrete point is considered as tending to 0. That is why it is able to approximate continuous. Okay, fine. Too much technical. मुझे नहीं समझा, to be very honest. Okay, Pranjal. Sir, I agree with Arpit that in Correct. integration it is continuous, and
In summation, it is discrete. Exactly. But I need to keep things simple. Shruti Raman is obviously right because थोड़ा technically बात की उसने, but technically अगर मैं बात करूंगा तो शायद यहाँ पे जो बच्चे जिनको कुछ they may not understand it. तो मुझे वो चीजें simple and sober रखना है. तो obviously like summation, as you rightly told, summation की अगर बात करते हो तो summation is for discrete and this for continuous. मतलब example, simple story है. This is a plate. और ये प्लेट के ऊपर कुछ मैंने चने रखा है यहाँ पे. व्हाट इज चना सर? ग्राम्स चना. कैन यू काउंट हाउ मेनी चनास आर देयर इन द प्लेट? कैन यू काउंट देम? यस, कैन यू काउंट देम? कैन यू काउंट हाउ मेनी चनास आर देयर ऑन दैट प्लेट, इन दैट प्लेट? यस और नो? Yes, फास्ट sir. प्लीज. Yes. Okay. Everybody is having hairs on their head. Yes, sir. Can you count number of hair on your head? Can you count number of droplets in the sea? Can you count number No, of sir. stars in the sky? No, sir. No, ना राहुल. Yes, कैसा यार? It is no. Sir, You can't. I said no. Okay, no. Yes, you can't count. When you can't count, because you're tending to infinitive, at that time, I'm going to use इंटीग्रेशन साइन. समझा सर? सिंपल. ओके. अब सुनिए सर, अब मजा आने वाला. अगर ये समझा है तो पूरी स्टोरी क्लियर होगा. सर, आर यू काउंटिंग ओवर हियर? डेल्टा टी प्लस 1, डेल्टा टी माइनस 1, डेल्टा टी माइनस 2. आर यू एबल टू काउंट? yes or no? If it is yes, then summation. If it is no, then it is discrete, then it is integration. Tell me yes or no. Are you able to count? क्या आपको दिख रहा है वहां पे डेल्टा टी माइनस 1, डेल्टा टी प्लस 2, और यहाँ पे जो मैंने डायग्राम जो ड्रॉ किया है, क्या इसको काउंट कर सकते हो? yes or no? सर ये डायग्राम में कर सकते हैं. खत्म. हो गया सर, हो गया. समेशन साइन. समझा सर? लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक लोचा है. क्या है भाई लोचा? सर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं समेशन लेता हूं और अगर मैं कहता हूं कि ये डिस्क्रीट है, जहां पे मुझे दिखता है विजुअली कि भाई ये डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी माइनस 1 है, डेल्टा टी माइनस 2 है, डेल्टा टी प्लस 1. सर इससे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप मुझे पूछते हो व्हाट इज द वैल्यू एट 1.25, व्हाट इज द वैल्यू 0.5, व्हाट इज द वैल्यू माइनस 1.25, आई से नो एंड माय मुंडी गो डाउन. एम्बैरेसिंग मोमेंट. यस और नो? एम्बैरेसिंग मोमेंट वहां पे आ जाता है बिकॉज वहां पे मुझे वैल्यू नहीं पता है. इतना अच्छा गाना गाया उसने, चमकू जैसे तेरे प्यार में जुगनू टा 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 टा, और उसको आपने ऐसा कर दिया, बाद में बोलते एम्बैरेसिंग मोमेंट आ जाता है. तो व्हाई डोंट यू टेक सैंपल वेरी मच क्लोजर लाइक दिस. अरे सर आगे तो बढ़ रहा हूं ना, आगे क्यों टेंशन ले रहा है? तो आगे बढ़ रहा हूं मैं. अरे सर कहां भाई उंगली घुमा रहे हो गोल गोल? अरे रुकना, दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ रहा हूं मैं. सर ये क्या है सर? ये आर यू एबल टू काउंट द नंबर ऑफ स्टैंडिंग लाइंस? यस और नो? आर यू एबल टू काउंट नंबर ऑफ स्टैंडिंग लाइंस? यस और नो? नो सर. No, so it is integration. So it is integration. When you're not able to count number of lines, it is integration. So integration यहाँ पे आता है और discrete में summation आता है. So now you tell me, what is this which are drawn over here? So this is a discrete time representation of a continuous signal. What about this? What about this? Fast. बोलिए. What about this? डिस्क्रीट ही है. कैसा डिस्क्रीट है यार? अभी तो बढ़ा दिया ना सैम्पलिंग रेट. सॉरी अभी ये सेकंड वाले में कंटिन्यूअस. यस हो गया, खत्म हो गया सर. यही तो सिखाना था आज के सेक्शन में कि व्हाई कन्वोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट. मतलब आपने पूरा जो आपका सिग्नल था उसको पूरा आपने ऐसा टुकड़ों में तोड़ के रखा, इतना कंटिन्यूस उसको कर दिया है कि इट गिव्स यू एन इल्यूजन कि इट इज अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. ओके, अब आते हैं मेन स्टोरी के ऊपर. काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस, देन वी गोइंग टू स्टार्ट विद अ छोटू सा डेरिवेशन स्टार्ट होगा. तो लिखिए सर मेरे साथ में भी आप. फाइन, वर्डिंग्स पढ़ा के दिखाता हूं आपको मैं. If the impulse response of an analog or continuous time signal be h of t,
वर्डिंग्स देखिए सर, कैसा वर्डिंग्स लिखा गया है नोटबुक बुक के अंदर. आई विल शेयर द स्क्रीन दिस थिंग विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट. इफ द impulse response of an analog or continuous time system be h of t, it means that for an input delta t, that means that for an input delta t, the output is h of t. ये बुक का वर्डिंग्स है. अगर डायरेक्टली बुक का वर्डिंग सुना तो आप घर चले गए होते कि भाई क्या है यार, ये को समझ ही नहीं रहा है. इसलिए आपको मैंने स्टोरी के माध्यम से सिखाया, सो थिंग्स बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब आगे पढ़े, आगे वर्डिंग्स क्या बोलता है. Hence, for a linear system, its output for a shifted impulse, for a shifted impulse. Hence, for shifted impulse, delta of t minus t, delta of t minus t, है ना, delta of t minus t will be h of t minus t. ऐसा बुक में लिखा हुआ है. The following are the mathematical representation of this operation. Point 1, point 2. ये बुक के अंदर लिखा हुआ है. अगर ये बुक पढ़ के सुना था तो आप बोलते सर क्या है ये. Fine. I hope now the things are clear to you because we know the backstory, what is happening over there. ये कैसे आए. Any student is having any doubt over here? How do I got these expressions? Okay, चलो. अब सुनिए. Multiplying random signal x of t on both the sides. So I say x of t dot what? Dot delta t minus, ये पूरे को अब मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो चल भाई तू भी इधर आ जा. ये पूरे के साथ में x of t अब मल्टीप्लाई होने वाला है. ओके, ये भी इधर आ जाएगा और ये h of t जो है ये इधर आ गया. ये आपका माइनस टी था वो इधर आ जाएगा और ये जो था वो इधर आ गया और यहाँ पे इसके साथ में भी x of t जो था रेड कलर वो यहाँ पे आ गया. आई एम मेंटेनिंग द कलर कोड सो बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर. फाइन. व्हाट इज दिस सर? व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? क्या दिखा रहा है आपको? कैन यू हेल्प मी सर? ये आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कैन यू हेल्प मी? यस बेटा, कैन यू हेल्प मी? व्हाट इज दिस? When you multiply original signal x of t with shifted impulse, what is this? Chalo. Now, taking integration on both the sides. Integration. Why integration, sir? Because it is continuous. Because I can't count the standing lines. Ranging कहाँ से लेना है सर? मुझे कहाँ से रेंज करना है मुझे बता सकते हैं आप? Ranging from माइनस टू प्लस इंफिनिटी. एग्जैक्टली, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. बिकॉज सिग्नल जो है वो यहां से यहां तक रहने वाला है. फ्रॉम माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव. समझा आपको यहाँ पे? एंड ऑब्वियसली दिस इंटीग्रेशन इज फॉर dt. क्यों dt? बिकॉज आप t को हिलाने वाले हो. t कैन बी 1, t कैन बी -1, t कैन बी 0. अंडरस्टैंडिंग सर? ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने t छोटा नहीं लिखा है बिकॉज मेरे लिए यहाँ पे वेरिएबल कौन है? कैपिटल T है. यहाँ पे मेरे लिए वेरिएबल कैपिटल T. क्यों? बिकॉज वेरिएबल T जो वो हिलने वाला है. t कैन बी 0, t कैन बी +1, t कैन बी -1, t कैन बी +2, t कैन बी -2 so on. इज इट क्लियर टू यू सर? ओके, फाइन. समझा आपको यहाँ तक? नाउ understood till here sir what you're trying to say. Okay, so now this can be written as fine. Understood till here sir? Okay, now अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने. Fine. Okay, so this expression y of t is equal to x of t, ये वाला रे x of t डॉट h of t minus t dt. मतलब जो लिखा था ना मैंने यहाँ पे ये पूरा. समझा सर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने इधर? हैव यू अंडरस्टूड विद दिस? और मैं इसको भी चेंज ऑफ वेरिएबल करने वाला हूं. इसको भी लिखूंगा मैं x of t. ये भी होगा आपका dt और ये होगा आपका dt.
finish, complete. And this is known as convolution of x of t dot h of t. Fine. This is the convolution of x of t and h of t, and the sign is given like this. आपको sign दिखा देता हूँ, उसका sign कैसे है. Then we will discuss in more great detail about this. Don't worry, sir. This is the convolution sign, star operator, and this is the convolution. This is the convolution. Why star, sir? Why star? Because if you see, ये जो operation जो मैंने जो लिखा है, ये जो operation जो मैंने लिखा है, this operation is involving multiplication. Yes, multiplication sign is there. How do you write multiplication? Like this. It includes addition as well, because यहाँ पे integration sign, but addition in other words. यहाँ पे addition भी है. It looks like a star, and hence I have drawn a star diagram over here. So I will be drawing here. Convolution is given by star sign, an asterisk. Okay, fine. Why it is known as convolution? Because here, when I'm providing impulse input, I got to know output as impulse response. So once I know how the system is going to behave on the application of impulse input, then I can find the output for any arbitrary input x of t, and hence the convolution is like this way. Convolution is a binary operator, because over here you require two operands x and h. आपको x भी चाहिए जो कि रैंडम सिग्नल होगा, और आपको सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स h भी चाहिए, तभी ही आप कन्वोल्यूशन कर पाओगे. In order to perform convolution, you require two operands x and h. Convolution is a complex operation. Complex मतलब complicated operation. Why complicated? Because it involves three things. Number one, multiplication. Number two, addition. Number three, shifting is also there, sir. Shifting is there. Shifting is a unary operator because only one operand is required, and h has taken the decision, yeah, I'll be doing shifting. So shifting is restricted. Shifting is only confined with h. But if I talk about what? If I talk about multiplication, addition, so for that I require x and h. Okay. Convolution is commutative in nature, means you can convolve x star h, or you may convolve h star t. Both will fetch you same answer. If you convolve x with h1 and with h2, so you may convolve first with x and h, then with h2, or first with h1 h2 and then with x. So this means it is associative as well. Okay, have you understood the entire convolution, sir? Have you understood the convolution? Okay, very important, sir. very important. इसलिए इसके पीछे मैंने मेहनत किया है. The reason is, आपके सीनियर्स को अगर मैं कभी भी पूछता हूँ, what is convolution? Sir, convolution is a binary operator. It is used to find third signal. मैं बोला ऐसा अगर पढ़ना था तो काय को मैंने 1 घंटा वेस्ट किया यार. Convolution is not to find third signal, sir. Convolution is used to obtain what is the impulse response of a system and how my signal will behave on that system if I apply an arbitrary random signal. ये wordings बहुत ही important है. Fine. हम लोग क्वेश्चन ऐसा कुछ करने वाले हैं. आपको पहले कहा था भाई कि 2 इनपुट का रिक्वायरमेंट होगा. क्वेश्चन ऐसे आता है, परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वोल्यूशन ऑपरेशन इन टाइम डोमेन. x1 ऑफ t, x2 ऑफ t, 2 इनपुट दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा देखो दोनों इनपुट जो है वो u ऑफ t है. फिर आप क्या करोगे, पहले आपको चेंज ऑफ वेरिएबल करना पड़ेगा. हाउ टू चेंज वेरिएबल? x ऑफ t टू x ऑफ टाउ. तो वो हो जाएगा u ऑफ t के जगह पे क्या हो जाएगा, u ऑफ टाउ. सी u ऑफ टाउ हो गया. तो ये पहला सिग्नल है आपका u ऑफ टाउ, एंड देन यू विल बी डूइंग सी. ये दिखा आपको u ऑफ टाउ. फिर यहाँ पे क्या लिखा है, u ऑफ h ऑफ t माइनस टाउ. तो आपको शिफ्टिंग भी करना है. फाइन. माइनस मतलब यहाँ पे माइनस भी दिख रहा है आपको. ओके, तो सी यहाँ पे रिवर्सल किया उसने, फिर इसको शिफ्ट करते गए. पहले इसका ऐसा रखा, फिर शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट. फाइन. सी शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट. जस्ट आई एम शोइंग यू व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग, एंड देन यू नीड टू फाइनली टू परफॉर्म
इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे आप, और इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको ऐसा आंसर आने वाला है। So just total convolution is like this. This is how convolution sum that we are going to do. Is it clear to you, sir? Okay. That's all for today.